everybody, welcome back to our channel named as Dialect Ground. Here is Sheenam. I hope you all are doing fine guys, and do subscribing, liking and commenting on our videos as per our videos which are very productive and for those who are really want to learn English language. So guys, हमने previous lecture में करा था कि कितनी तरीके के opinion में question आते हैं, किस टाइप के आते हैं और किन प्रोपोर्शन में हमें उसको लिखना होता है, that how many paragraphs we can make, what is the important part in the opinion based question. So now we are left with another two types, which one is the factual and the combination. So today we are working on that. So let's start with it. So guys, let's talk about factual based question. First, again, I really want to tell you the meaning of factual. Factual means guys, जो चीज़ सच है, जो चीज़ हो रही है, and which is happening right now. So that is our factual based question. Means जो भी हमें दिख रहा है कि ये चीज़ें आजकल हो रही हैं, हमें उसके perspective से अपने writing task को लिखना होता है. So there are very few types that comes under the category of factual based. So let's start. So guys, as we can see from the board, the first type that comes under the factual based question is what are the advantage and disadvantage of internet. पहले तो गाइज मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि कैसे पता चलता है कि ये चीज फैक्चुअल में है. मैंने अभी आपको बताया कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर दोज जो लॉजिकली ट्रुथ होते हैं, जो सच होते हैं, जो चल रहा है, और चलने का हमारा आइडिया टेंस से पता चलता है कि किस टेंस को एग्जामिनर ने यूज करा है हमें ये बताने के लिए कि जो चीजें चल रही हैं हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टास्क को लिखना है. इफ यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन गाइज, they are saying what are. So are, we all know, SMR is used for the present continuous. So with this we can get a hint that this is our factual based question कि जिसमें हमें वो चीज़ें लिखनी है जो already चल रही हैं. अब guys, this is only a question. आपको इसके ऊपर कोई भी statement आ सकती है that nowadays internet usage is increasing day by day. So tell me what are the advantage and disadvantage of internet. तो guys, अगर मैं इसको लिखने की बात करूँ, इसका क्राइटेरिया भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा. सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, we need to mention the introduction, okay, and as well as conclusion at the last. So ये वो दो चीज़ें हैं गाइज जो हमें लिखनी ही होती है अपने टास्क 1 या टास्क 2 में, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि हम अपने टास्क को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, और कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि गाइज हमने पीछे अपने पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन में क्या बताया. अगर मैं बात करूँ गाइज कितनी चीज़ें हमें पूछी जाती है फैक्चुअल में, दैट इज ओनली 2. You can see from the example that they are asking you, tell me the advantage as well as the disadvantage. So in this case guys, you don't need to bother about anything. You can make one paragraph for the advantages, in which you can even mention one advantage or two advantage. Same as like you can even make the disadvantage for the another paragraph. And you can even go with the one disadvantage or two disadvantage in the another paragraph. So with this criteria guys, you can mention your both things, advantages and disadvantages. Guys, one more thing I really want to tell you that ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें equal weightage में दोनों को लिखना है. कई बार क्या होता है कि एग्जाम में बच्चों को एक चीज़ ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं और एक चीज़ में लिमिटेड पॉइंट्स हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ आपको बोला है आप दोनों बताओ, और आप उसको किसी भी वेटेज में बता सकते हो. बट येस, वो चीज़ गलत हो जाएगी गाइस कि अगर आप बिल्कुल दूसरी साइड को अवॉइड करके चल रहे हो. दैट विल बी अ रॉन्ग केस कि अगर आपने 2 एडवांटेज या 3 एडवांटेज बता दी और डिसएडवांटेज आपने बताई नहीं, दैट विल बी द रॉन्ग टास्क रिस्पॉन्स. सो मेक श्योर आपको दोनों चीजों को बताना है. बट यस, आप वेटेज किसी भी में लेके चल सकते हो, चाहे अनइक्वल वेटेज में ले जाओ चाहे इक्वल वेटेज में ले जाओ. बट हमें टास्क के डिमांड को फुलफिल करना है कि उन्होंने दोनों चीजें बोली हैं, तो हमारी दोनों चीजें ही अपने टास्क में होनी चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ factual based question. So guys, this is another question type which is comes under the category of factual based question, that is causes and effects. पहले तो गाइज हमें ये चीज़ों को समझना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय कॉज एंड व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्ट. गाइज कॉज मीन्स कारण, रीजंस यू नीड टू डिफाइन इन योर टास्क. बट अगर मैं वही बात करूँ इफेक्ट्स, दैट कैन बी द रिजल्ट कि उसका
रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी, या उसकी आउटपुट, या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आ रहा है, जो चीज उसका कारण है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉजेज मीन्स रीजंस एंड इफेक्ट्स मीन्स उसका रिजल्ट क्या आएगा. Let's play with the example. अगर आपको क्वेश्चन आया है that nowadays traffic congestion is increasing day by day due to the number of cars on the roads. After that they can give you this question, what are the causes and effects of this? तो आपको सिंपल अंडरस्टैंड करना है कि मेरा जो क्वेश्चन है, सी गाइस वन मोर थिंग आई रियली वांट टू टेल यू, जब भी हमारे पास फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दैट ऑलवेज कम्स विद द सिंगल स्टेटमेंट. आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आएगी और उसी पॉलिसी या उसी ट्रेंड को लेके आपको उसके कॉजेज या इफेक्ट्स बताने होते हैं. सो आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक कंजेशन. तो पहले तो हमें उसके कॉजेज बताने हैं और उसके बाद हमें उसके इफेक्ट्स की भी बात करनी है. सो यू आर हैविंग टू टाइप्स दैट यू हाउ यू कैन राइट योर कॉजेज एंड इफेक्ट्स. पहले तो गाइज वही इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन इज मस्ट दैट यू नीड टू राइट इट डाउन. सेकेंड थिंग, आप दो तरीकों से ये वाला टास्क लिख सकते हो. लाइक आपने वन कॉज इसमें बताया, ओके, और साथ ही आपने इफेक्ट भी इसी में बता दिया. एंड सेम लाइक दैट इन द अनदर पैराग्राफ आपने सेकेंड कॉज इसमें बताया और सेकेंड इफेक्ट इसमें बता दिया. सो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न दैट यू कैन फॉलो इन योर कॉजेज एंड इफेक्ट टाइप. और यू कैन डू ऑल्सो वन थिंग, आप सिंगल पैराग्राफ में ही दोनों कॉज बता के और अनदर पैराग्राफ में दो इफेक्ट बता सकते हो. बोथ आर राइट गाइस, यू कैन गो विद एनी अदर पैटर्न. मैंने कई बार सुना है अपने स्टूडेंट से, मैम कौन सा पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव है. गाइस बैंड्स आर सेम, यू जस्ट नीड टू फुलफिल ईच एंड एवरी कंडीशन दैट एग्जामिनर आस्क्स. चाहे आप ये वाला पैटर्न कर लो, डिफरेंट पैराग्राफ फॉर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स, या आप दूसरा पैटर्न कर लो जिसमें आप एक ही पैराग्राफ में एक कॉज और इफेक्ट और दूसरे पैराग्राफ में कॉज और इफेक्ट दूसरा बता रहे हो. नथिंग हैव सम काइंड ऑफ अनइक्वल बैंड वेटेज, सब में बैंड सेम मिलने हैं. बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका रिस्पॉन्स सही जाए. आपको जो चीज की डिमांड आई है यू नीड टू राइट इट डाउन द सेम. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकंड कैटेगरी ऑफ फैक्चुअल बेस, दैट इज व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स. बट नाउ विल मूव टू द लास्ट कैटेगरी, दैट इज द कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन गाइस. यस, अब कॉम्बिनेशन नेम से पता चल रहा है कि शायद हमें यहाँ पे फैक्ट भी प्ले करना पड़े और ओपिनियन भी. यस guys, you are right, we need to do the same. हमें factual में भी लिखना पड़ेगा along with अपना opinion भी रख के चलना पड़ेगा. So this is the first category that you can see on the board, that is what are the reasons, or you can say causes, and suggest some solution. So this is the first category guys. चीजें वही हैं, डिमांड रिस्पॉन्स को ध्यान रखना है कि क्या रिस्पॉन्स एग्जामिनर ने मांगा है और हर एक चीज को फुलफिल करना है. गाइस अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, मेरे को दो चीजें दिख रही हैं. वन इज द रीजन, अनदर वन इज द सॉल्यूशन. सो सेम थिंग दैट यू नीड टू डू. आई टेक द एग्जांपल ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट जो हमने करा था, दैट नाउअडेज ट्रैफिक कंजेशन इज इंक्रीजिंग ऑन द रोड्स ड्यू टू नंबर ऑफ कार्स. एंड आफ्टर दैट दे गिव यू ओके व्हाट आर द कॉजेज एंड सॉल्यूशन. जो पिछली टाइप में आया था फैक्चुअल में, दैट इज कॉजेज एंड इफेक्ट्स. बट आज गाइस अभी हमने करना है कॉजेज एंड सॉल्यूशन. थिंग्स आर क्वाइट सेम गाइस, वैसे ही चीजों को करना है. दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू कैन मेक बॉडी पैराग्राफ 2 कॉजेज और आपको बॉडी पैराग्राफ 2 में 2 सॉल्यूशन रख देने हैं. एंड जस्ट सिंपली कंक्लूड योर टास्क. सिंपल, आपको कोई भी 2 कारण बता देने हैं, दैट व्हाई देयर इज अ ट्रैफिक जैम्स ऑन द रोड, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू कम अप विद द सॉल्यूशन कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है. सिंपल, यू कैन गो विद दैट. अगर आपके पास गाइस आइडिया ज्यादा है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यू कैन इवन डू द यूज ऑफ बॉडी पैराग्राफ 3 इफ यू नीड इट. अगर आपको लग रहा है कि मेरे कई पिछले आइडियाज ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, आई शुड गो विद द सम अनदर आइडियाज, यू कैन इवन प्ले विद द बॉडी पैराग्राफ 3. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन 1 कि जिसमें हमें पहले कारण भी बताने हैं जो चल रहे हैं और उसके बाद अपनी कोई रिकमेंडेशन, अपना सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है कि क्यों मैं ये चीज कह रही हूँ. One more pattern is there you can use in the case of causes and solution guys. You can do one more thing. आप body paragraph 1 में फर्स्ट कॉज बता सकते हो, बॉडी पैराग्राफ 2 में सेकंड कॉज बता सकते हो, और गाइस आप कंक्लूजन में ही अपना सॉल्यूशन बता सकते हो, रिकमेंडेशन. ये उन लोगों के लिए जिनका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता.
I many times heard that मैम हमारा पेपर में अगर टाइम नहीं बचा, what we need to do, how many paragraphs we can contain. Guys, for them this is a trick. अगर आपने कॉजेज लिख लिए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा टाइम जल्दी से जा रहा है, व्हाट यू कैन डू इज आप कंक्लूजन में ही लिखते लिखते फटाफट से अपना एक हल्का सा रिकमेंडेशन वाइंड अप कर सकते हो. इससे क्या होगा, आपकी हर चीज फुलफिल भी हो जाएगी, प्लस आपका टास्क भी टाइम पे कंप्लीट होगा. सो आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो दिस टेक्निक एंड नॉट गोइंग टू lose your balance. So guys, let's move to the another type of combination base, that is what are the causes, effects and solution. मेरे को लग रहा है कि काफी बच्चों को लगा होगा कि मैम पिछले वाला तो नहीं दोबारा करवाने लगे. No guys, there is one thing that we added, that is effects. नॉर्मली वैसे मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको अकेला कॉजेज और सॉल्यूशन भी आया है तब भी इफेक्ट बताओ, तब भी उस चीज का रिजल्ट बताओ कि इस चीज से ये नुकसान होगा. बट अगर आपको स्पेसिफिकली ये चीज आ ही जाए तो हम छोड़ ही नहीं सकते गाइज उस चीज को. सो व्हाट यू नीड टू डू इन दिस केस, आपको ट्रैफिक के कॉजेज भी बताने हैं, आपको उसके रिजल्ट्स मतलब क्या नुकसान होगा उससे वो भी बताना है, और लास्ट में आपको उसका सॉल्यूशन दैट हाउ वी कैन ओवरकम दैट सिचुएशन वो भी बतानी है. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. सो इन दिस केस हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट आवर पैराग्राफ, आप फर्स्ट पैराग्राफ में 2 कॉजेज बता दो, सेकेंड पैराग्राफ में 2 इफेक्ट बता दो, और थर्ड पैराग्राफ या आप कंक्लूजन में ही अपना सॉल्यूशन वाइंड अप कर सकते हो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया. और यू कैन डू अनदर पैटर्न, दैट इज आप एक ही पैराग्राफ में कॉज प्लस उसका इफेक्ट बता दो, और दूसरा कॉज और इफेक्ट बता दो, थर्ड वाले में आप सॉल्यूशन बता दो, और कंक्लूजन को सिंपली वाइंड अप कर दो द वे यू वांट. सो एनी पैटर्न गाइज यू कैन यूज, जैसे भी आप करना चाहते हो. आपके पास एक और तरीका है जो आप कर सकते हो, आप इसमें एक कॉज एक इफेक्ट बता दो, इसमें दूसरा कॉज इफेक्ट बता दो, और कंक्लूजन में अपना सॉल्यूशन बता सकते हो. इट्स अप टू यू गाइज, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है. एग्जामिनर सेट यू फ्री कि जो भी मैंने पूछा है आप जिस मर्जी पैटर्न से जितने मर्जी पैराग्राफ बना के आप मेरे को प्रोवाइड कर सकते हो, बट ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड इन योर पेपर. सो दिस इज ऑल अबाउट our another category, that is what are the causes, effects along with the solution, why and is it a positive or negative trend. So guys, I really want you to understand this with the example. Suppose आपको कोई statement आई है that nowadays couples are decide to have babies in later time, और नीचे आ गया है why and is it a positive or negative. सेम वही चीज़ है, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन आया है कि आजकल जो कपल्स हैं वो अपने बेबीज को लेटर एज में प्लान करना चाहते हैं. पहला उसने डिमांड करा वाई, विच इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फैक्ट. हमें इसमें क्या बताने हैं, आई गिव यू अ हिंट, व्हाट आर द रीजंस. वाई सिंपली मीन्स व्हाट आर द रीजंस. हमें इसमें कारण बताने हैं कि क्यों लोग आजकल बेबीज लेटर एज में प्लान करते हैं. एंड सेकेंड वी नीड टू कवर अप, दैट इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड. क्या ये बात अच्छी है या बुरी, तो हमें दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन बेस, जिसमें उसने जो कारण चल रहे हैं वो पूछा है और आपका ओपिनियन पूछा है कि क्या ये सही है या गलत. तो इसमें भी गाइज हमने वही चीजें करनी है, दोनों को प्ले करना है. पहले तो हम क्या करेंगे, बॉडी पैराग्राफ में रीजंस बता देंगे, और सेकेंड पैराग्राफ में हम या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चूज कर लेंगे, बट हम दोनों चूज नहीं कर सकते. रिमेंबर दैट, क्योंकि मैंने आपको ओपिनियन बेस्ड वाली टाइप्स में बताया था कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, डू यू अग्री और डिसअग्री, इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों में से गाइज इट्स अ काइंड ऑफ अ कमांडिंग क्वेश्चन. हमें इसमें सिर्फ एक ही चीज को सिलेक्ट करना होता है, चाहे हमारे पास पॉइंट दूसरी साइड के भी हैं. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर सिचुएशन और एग्जामिनर कमांड, दैट ही इज आस्किंग यू फॉर ओनली वन थिंग. सो इन दिस केस गाइज either choose positive side or negative side, but don't choose both, because that will be wrong response for you in the exam. So please focus on this. Even you can go with another pattern, same इसके भी 2 पैटर्न है, या तो आप रीजंस का एक पैराग्राफ बना दो और पॉजिटिव और नेगेटिव का एक बना दो, या गाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, अपने रीजन के साथ साथ ही बता सकते हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
और ऐसे ही दूसरे पैराग्राफ में रीज़न 2 बता के उसका बता दो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ गाइस, अगर आप दोनों रीज़न को लेके चल रहे हो तो दोनों ही आपको फिर पॉजिटिव बताने पड़ेंगे और यहाँ दोनों ही आपको नेगेटिव बताने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ आवर क्वेश्चन दैट वी हैव टू चूज ओनली वन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ दैट कम्स अंडर combination based question. Now this is our another type that comes under the category of combination, that is why, as well as we need to tell them that our advantages outweigh the disadvantages. गाइज मैं सेम सिचुएशन लूँगी, वही पिछली वाली एग्जांपल कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बेबीज़ को लेटर एज में प्लान करते हैं। वाई तो वही रहेगा कि हमें अगेन रीजंस ही बताने हैं, दैट वी नीड टू क्रिएट अ वन पैराग्राफ ऑफ द रीजंस। Yes, now there is some kind of a twist in your question. Guys, this is a type which is quite lengthy, जिसमें हमें सारी चीज़ें बतानी ही पड़ती हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आया, that is advantages outweigh the disadvantages. I hope you remember guys, मैंने जब अपने पिछले लेक्चर में जब ओपिनियन बेस्ड के क्वेश्चन को डिस्कस करा था, हमने उस चीज़ में जब आउटवे वाला क्वेश्चन करा था, मैंने आपको बोला था इसमें आपको पार्शियल केस ही रखना पड़ेगा, मतलब इसमें हमें दो साइड्स को बताना है और अनइक्वल वेटेज में बताना है, मतलब एक साइड को ज़्यादा और एक साइड को कम। अब वही कैटेगरी यहाँ पे भी सेम लाई करेगी गाइज। अगर आपके पास ये क्वेश्चन टू पार्ट में भी आ जाता है तब भी आपको 70-30 का ही प्ले रखना है गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। ऐसा भी नहीं चलेगा कि आपने ऊपर कर दिया कि ये चीज़ ज़्यादा एडवांटेजेस है, कम डिसएडवांटेजेस, और आपने डिसएडवांटेजेस बताई नहीं, सिर्फ सिंगल लाइन में लिख दिया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आपने भी इसमें रीजंस का पैराग्राफ बना देना है, आप एक रीजन डाल दो, दो डाल दो, दो से ज़्यादा डाल दो, इट्स अप टू यू। सेकेंड आपने क्या करना है गाइज, आपने बॉडी पैराग्राफ में अगर आप सोचते हो कि ज़्यादा एडवांटेजेस है, आप सेकेंड पैराग्राफ में दो एडवांटेजेस बता दिए, एंड यस गाइज दिस पैराग्राफ गोइंग टू बी मस्ट इन दैट केस। अब आपको इसमें एक डीमेरिट तो बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब क्वेश्चन ही वो आ गया है कि हमें अनइक्वल वेटेज में पार्शियल जाना ही पड़ेगा। सो दिस कैन बी क्वाइट लेंथी, बट ये केस बहुत रेयर आता है, बट स्टिल वी नीड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ। आप ऐसे ही करोगे जब भी आपको टू पार्ट में क्वेश्चन आ जाए और उस पार्ट में सेकंड पार्ट हो आउटवे का। तो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, ऐसा नहीं करना कि लेंथी बहुत हो जाएगा, चलो फटाफट से, डोंट प्ले रॉन्ग। If you know that what is the difference between outweigh and choosing one side, और अगर आपको outweigh आ गया आपको लिखना ही पड़ेगा guys, there is going to be command on that, so please do it, work on your time constraint, so जिससे आपका ये length भी फटाफट से cover हो जाए आपके time constraint पे। About our today's lecture in which we cover up the fact types and the combination based. I hope guys you are going to like our this video even and going to spread your love in the comment section and in the form of likes, and do share as much as you possible guys, and do comment us your reviews guys, so we can even make our videos more better for you, we can even make your learning more freely. So do comment that, and not to forget to subscribe, like and comment on our channel. Here is Sheenam guys signing off about